आज we're going to look into try to understand Spinoza. Spinoza is as easy or as difficult as Shankaracharya is to understand. Spinoza खुद he is when intellect marries moral excellence. That is Spinoza. Terrific moral integrity, great intellectual of the Western canon. A bridge between East and West of sorts. He is considered one of the symbols of what is best in East and what is best in West. उसका एक amalgamation Spinoza है. His can be considered the most uncompromising monotheism. और इनका philosophy जो होगा फलसफा वो आपको through and through it would remind you of Vedant. Baruch Spinoza नाम था इनका originally, but you would know him as Benedict Spinoza. Original नाम बारूक स्पिनोजा था. 1632 एम्स्टरडैम में पैदा हुए थे. आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा एरा है. ये डेकार्ट का एरा है. डेकार्ट इज एट हिज पीक एट दिस टाइम. डेकार्ट ने धूम मचा के रखी है. At that time is born Spinoza. So you see it's like that relay race, and one is about to leave the world and he is giving that flame to some other person. Merchant class थी family इनकी, Jewish, but he was well educated by his father. He was a genius. He was considered a genius, and that led him to a very different doctrine of God than what his own Jewish community held. तो 1656 में इनको he was thrown out of the society, excommunicated. You're not part of us. You're not one of us. Spinoza इसके बाद क्या किए? He did not bend his thoughts to accommodate others. He did not do that. He was true to what he believed in. आराम की जिंदगी भी क्या कहें इसको, बट ही हैड हिज पीस. सो ही वुड वर्क. छोटा मोटा काम ये करते थे. ग्लासेस बनाने का, साइंटिफिक ग्लासेस बनाने का काम ये ज़्यादातर किए हैं. तो एक तरीके की इंडिपेंडेंस भी इस तरीके से इन्होंने हासिल की और डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर दिस फिलोसॉफिकल इंक्वायरी. इनका फेम जब बढ़ने लगा तो 73 के आसपास he was offered the chair of philosophy in a top university, Heidelberg में. और इनको एश्योर किया गया कि आपको कोई नहीं रोकेगा अपने थॉट्स पेश करने से. यू कैन इवन discuss your own thoughts as well, which were very controversial for his time, I mean. So he would have full freedom to teach the way he wanted. But Spinoza declined the offer. And many would say rightly so, because with every power comes some responsibility, and there are still handcuffs everywhere. तो जब आप किसी पोजीशन पे होते हो तो अल्टीमेट फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल. सो हाउएवर यू वांट टू लुक एट इट, सो दैट वाज द केस. इसके 5 साल बाद लगभग ही फेल इल एंड ही डाइड वेरी यंग एज. 44 ही वाज. 1677 में he died. So he lived a very short life, but in that very short life you can understand बहुत इन्होंने अपनी छाप छोड़ गए. सबसे मशहूर काम जो इनका है वो है एथिक्स. उसका नाम एथिक्स है. Does not necessarily have to deal with ethics only. By and large it's a metaphysical text, considered a masterpiece, but a very dry and difficult text. Ethics. इसके अलावा इनकी और भी कुछ राइटिंग्स है जो बहुत मशहूर है. उनमें से सबसे मशहूर ट्रैक्टस है. ट्रैक्टस की भी बहुत इज्जत है जो इन्होंने लिखी है. इनकी एक किताब इनके मरने के बाद पता चला. दैट इज़ published now as treatise concerning God and man. It's a very later finding. ये बहुत बाद में पता चला उन्होंने लिखा था. इन्होंने डेकार्ट पे भी किताबें लिखी है, प्रिंसिपल्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ डेकार्ट. ये 1970 के आसपास उन्होंने लिखा. डेकार्ट वाज नो मोर बाय देन.
ये जो हमारे प्यारे स्पिनोजा हैं, considered him to be the most hated philosopher in the Western canon. सबसे ज़्यादा अगर किसी पे गुस्साए हुए थे लोग तो वो स्पिनोजा पे थे. You will literally feel for him because he was really एक बहुत अच्छे इंसान थे. But what is the reason for that? He has his philosophy has been interpreted like polar opposite interpretation. Polar opposite. एक बंदा बोलेगा तो कह रहा खुदा है, दूसरा कहेगा तो कह रहा खुदा ही नहीं है. That polar opposite. एक बोलेगा कि he is saying it is blue, the other would say he is saying it's white. So it's like इनके interpretation इस हद तक का मतलब his work leaves that space. कोई कहेगा पैंथीइज्म, कोई कहेगा एथिज्म, कोई कहेगा आइडियलिज्म, कोई कहेगा एम्पिरिसिज्म, कोई कहेगा नॉर्मलिस्ट थे, कोई कहेगा रियलिस्ट थे, कोई कहेगा नेचुरलिस्ट थे, कोई कहेंगे एकॉस्मिज्म थे. इस वजह से स्पिनोजा को एज ए स्पिनोजा को हम यूनिवर्सिटी में या एक डिटैच्ड व्यू से पढ़ना बेहद मुश्किल है. स्पिनोजा के बारे में विदाउट ओपिनियन उसको पढ़ाना बेहद मुश्किल है क्योंकि स्पिनोजा को इंटरप्रेट डिफरेंट डायरेक्शन में किया है. तो एज ए न्यूट्रल टीचर व्हाट वुड योर पोजीशन बी ऑन स्पिनोजा? वेरी डिफिकल्ट टू टेक वन. इसी वजह से आप देख खुद समझ सकते हैं, ही वाज कॉल्ड इन हिज टाइम ए hideous atheist. A hideous atheist in inverted commas, he was called that. That's verbatim. एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड, अगर आपको याद होगा पिछले सेशन में भी जब भी मैंने स्पिनोजा की बात की तो आई कॉल्ड हिम ए गॉड इंटॉक्सिकेटेड फिलोसफर, गॉड इंटॉक्सिकेटेड मिस्टिक. Think about a person who one group calls God intoxicated person and other calls hideous atheist. So very difficult when I'll be talking about his concept of God. Very difficult to take a position and or remain neutral. तो जब इतना डाइवर्स अकाउंट हो किसी के फिलॉसफी का तो आप समझ ही सकते हैं कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ है क्रिटिसाइज करने के लिए. पैंथीइस्टिक क्रिटिसाइज करेगा कि देखो भाई, जो लोग कहते हैं कि से फॉर एग्जांपल देयर आर पीपल हु वुड कंसीडर हिम एथिस्टिक. नाउ द पीपल हु आर थीस्टिक, they would take these things and they would criticize him for it. Similarly opposite, अब कोई इंटरप्रिटेशन इसकी थीज्म की ले रहा है तो एथिस्ट क्रिटिसाइज करेगा. और बेचारे स्पिनोजा इज पाउंडेड एवरीवेयर. And then his use of terminology, geometric nature of the presentation, ये सब बहुत ही ज़्यादा ये additional factors हैं which make it difficult for us to understand Spinoza. Does that mean that a study of Spinoza is not possible then? No, that is not what it means. Study of any philosopher is possible. If you remember what we finished yesterday with, then yes, that the study of a particular philosopher or study of a particular philosophy is not for the sake of knowledge of it, but the wisdom that you derive from it. You don't read Spinoza to understand what Spinoza said. You read Spinoza to become wiser. In that particular way, Spinoza is, we can understand him. और इस सब के बावजूद वी कैन स्टिल मेक अ फ्यू थिंग्स जिस पे बाय एंड लार्ज एग्रीमेंट्स हैं. स्पिनोजा ने वेस्टर्न फिलॉसफी में जो डेकार्ट ने काम शुरू किया था उसको आगे चलाया. इस वजह से कहा जाता है कि स्पिनोजा इज डेकार्ट्स मेड कंसिस्टेंट. Needless to repeat again that others disagree. No, that's not the case. He is a totally different philosopher. Where would our position be? We would take him in the canon of rationalism because that's where most of agreement is. And you would be able to see कि on this superficial जब हम superficially देखेंगे इनको तो वहाँ पे हमको यही दिखेगा कि हाँ, डेकार्ट की बात को आगे चलाया जा रहा है. कंट्रास्ट्स भी क्लियर होंगे. डेकार्ट की तरह ही स्पिनोजा had immense faith in reason. The X he was using was the X of reason. And like a true rationalist, Spinoza holds that we can know truth through reason.
रीज़न ही हमको नॉलेज दे सकता है रियलिटी का, बिकॉज रियलिटी इटसेल्फ इज रैशनल इन नेचर। सुपिनोजा के हिसाब से गॉड हिमसेल्फ क्रिएट्स द वर्ल्ड रैशनली, और इंट्यूशन ही है, इट्स अ थॉट इन माइंड जो which makes you realize true knowledge. It is intuition by which one knows the necessary relation between different phenomena. स्पिनोजा के हिसाब से फलसफे का मकसद है टू गेट कंप्लीट नॉलेज ऑफ थिंग्स, और ये वो कहते हैं कि दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव क्लियर एंड डिस्टिंक्ट थिंकिंग। डेकार्ट की तरह ही बिलीव्ड कि अगर हम स्टार्ट करें कुछ सेल्फ एविडेंट प्रिंसिपल्स के साथ, और उसके बाद हम उस पे प्रिंसिपल्ड स्टेप्स we keep on doing, we would be able to reach further certain and universal knowledge. Now, where is a parallel of this particular methodology? Geometry. Geometry में आपको ये पैरेलल दिखेगा। Geometry में क्या करते हैं? We start with axiomatic truths, जिसको हम प्रूव नहीं करते, वो axiomatic होते हैं। Point, line, plane, axiomatic truths। फिर जब हमने वो एस्टैब्लिश किया, उसके बाद हम डिराइव करते हैं सब कुछ। मिड पॉइंट थ्योरम, ये सब हम कैसे करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, ये सारा कुछ हम डिराइव करते हो बेस्ड अपॉन आवर एक्शंस, और उस पे द लॉज ऑफ डिडक्शन अप्लाई देम ऑन इट, सो वी रीच इट। हमारे सुपिनोजो साहब यही कह रहे हैं करने को, इसीलिए इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। अगर आप एथिक्स उठा के पढ़ें, मैंने नहीं पढ़ी है, अलबत्ता व्हेनेवर आई रीड अ फिलोसफर लाइक दिस, आई डू टर्न टू देयर बुक्स वंस, कि मैं देखता हूँ कि व्हाट वाज देयर वे ऑफ राइटिंग। तो in that sense I has read 50 odd pages from ethics, different जगह से। his statements are mathematical, अगर आप देखेंगे mathematical statements। तो geometric method उसमें आपको दिखेगा कैसे कि he would start with certain axiomatic truths and then उससे क्या क्या derive किया जा सकता है, वो यहाँ पे भी होगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ, इसमें कोई ज्योमेट्री यूज नहीं हो रही द वे यू अंडरस्टैंड, इसमें कोई प्लेन सर्कल्स नहीं होंगे, तो बिकॉज इट गिव्स दैट इमेज कि ज्योमेट्री मतलब लाइंस एंगल्स, नो दैट्स नॉट, इट्स द मेथड दैट इज ज्योमेट्रिक। And now you understand why is it called so, because he lays down certain definitions, axioms, postulates, and from these he deduced all the things which he believed in. सुपिनोजा शुरू कहाँ से करते हैं? सुपिनोजा शुरू करते हैं, उनकी पहली डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ सबस्टेंस। यहाँ से वंस वी एग्री ऑन द डेफिनेशन ऑफ सबस्टेंस, मसला ख़त्म। जब सबस्टेंस डिफाइन हो गया, उस डेफिनेशन के बलबूते पे 10 चीज़ें और प्रूव हो जाएंगी। Now that's the first point we'll be discussing. The concept of substance. सुपिनोजा के हिसाब से हमारा पूरा जो इल्म है, ये 3 चीज़ों के बारे में हो सकता है। Knowledge is possible of 3 things, or in other words there are 3 objects of knowledge. ये तीनों हमको समझने होंगे, इसमें से एक हम आज समझने की कोशिश करेंगे। One is substance, second is attribute, third is mode. Now here is one more reason to believe he is only working further on Descartes, because this is what you have already understood in Descartes: substance, attribute and mode. Spinoza ka, he had this vision of his idea was of the unity of all things, वजूद की वहदानियत पे के कायल थे, यूनिटी ऑफ ऑल थिंग्स। क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज ही स्टार्ट्स विद समथिंग फ्रॉम विच एवरीथिंग कैन बी शोन टू फॉलो नेसेसरीली। ये समथिंग जो है, इसको ये सबस्टेंस कहते हैं, और सबस्टेंस की डेफिनेशन में ही फॉलोज डेकार्ट। क्या है वो डेफिनेशन? दैट विच इज इन इटसेल्फ इज कंसीव्ड थ्रू इटसेल्फ, द कंसेप्शन ऑफ विच डज नॉट नीड द कंसेप्शन ऑफ एनी अदर थिंग फॉर इट्स फॉर्मेशन। ये है सबस्टेंस, जो खुद में है, खुद ही से है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है अपने होने के लिए।
ये है सबस्टेंस। ये डेकार्ट ने भी सबस्टेंस इसी को कहा था। अलबत्ता अगर आपको डेकार्ट याद होगा, डेकार्ट ने माइंड और बॉडी को भी डिपेंडेंट सबस्टेंसेस बोला कि ये सबस्टेंसेस हैं बट दे डिपेंडेंट सबस्टेंस। स्पिनोजा इस बात पे डिसएग्री करते हैं, एंड राइटली सो। दैट्स व्हाई ही समटाइम्स कॉल्ड डेकार्ट मेड कंसिस्टेंट। कहते हैं ये क्या वर्ड आपने इस्तेमाल किए, डिपेंडेंट सबस्टेंस। अभी जो हमने सबस्टेंस की डेफिनेशन बोली दैट वाज व्हाट, विच इज इंडिपेंडेंट। अब आप बोल रहे हैं डिपेंडेंट सबस्टेंस, इट्स कंट्रडिक्शन ऑफ टर्म्स एंड ही इज राइट इन दिस क्रिटिसिज्म। एक सबस्टेंस cannot depend on anything else. Definition of substance is that as such there can be how many substances? There can be only one substance. सिर्फ एक ही हो सकता है। अगर एक से ज्यादा सबस्टेंस होंगे they would limit each other, so they would take away self sufficiency of the other. ये एक सबस्टेंस जो है इसको डेकार्ट गॉड कहते हैं। इस पे इसको समझिएगा, ये सबस्टेंस को गॉड कहते हो और इसी को शंकराचार्य ब्रह्मन कहेंगे, आत्मन। जिसको ये क्या डिफाइन करते हैं, ए बीइंग एब्सोल्युटली इनफाइनाइट। सो सबस्टेंस क्या है, ए बीइंग एब्सोल्युटली इनफाइनाइट substance consisting in infinite attributes, each of which express eternal and infinite essence. डिटो ब्रह्मन यही है शंकराचार्य का। तो सबस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट और अनलिमिटेड। इनफाइनाइट क्या होता है, बाय इनफाइनाइट ही अंडरस्टैंड्स दैट विच इज यूनिकली इंडिविजुअल, क्योंकि सबस्टेंस कैन बी कंसीव्ड ओनली इन इटसेल्फ। ऑर्डिनरीली हम क्या करते हैं, आमतौर में हमारी जिंदगी में हम किसी भी चीज को कंसीव करते हैं, इवन इफ वी डू नॉट नो इट बट वी आर कंसीविंग इट एज इन कंपैरिजन टू समथिंग। जब हम बोलते हैं ये चीज गर्म है, इट्स इन कंपैरिजन विद समथिंग। ये चीज ठंडी है, इट्स इन कंपैरिजन विद समथिंग। इवन द प्राइमरी क्वालिटीज वो भी कॉम्पेरेटिव ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बोलेंगे a particular thing is yellow in color, a particular thing is black in color, then we mean that the particular thing has a quality of that color which is found in certain other things as well। जिस चीज पे हमने agreement किया है कि this is yellow and that it is not black, it is not red, it is not gray and all other things। तो कंपैरिजन से हुआ। अगर हर एक चीज का कलर सेम ही होता तो कुड यू हैव टॉक्ड अबाउट कलर्स? नो, इट इज ओनली इन कंपैरिजन दैट यू आर एबल टू टॉक अबाउट कलर्स। स्पिनोजा कहते हैं सबस्टेंस को हम कंपैरिजन से नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रेफर टू इट थ्रू कंपैरिजंस। व्हाई? बिकॉज सबस्टेंस इज दैट व्हिच इज इन इटसेल्फ, देयर इज नथिंग आउटसाइड इट जिसके साथ आप उसको कंपेयर करेंगे। तो ये जो ये इनका एम्फेसिस है डेफिनेशन पे, बार बार एक्शन पे जाना, so this leads to that uniqueness of that particular thing and this prevents the thing from having any qualification whatsoever। so substance would have no qualifications। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सबस्टेंस को ये नहीं कह सकते कि वो मॉरल है, वो इंटेलेक्चुअल है, बिकॉज moral is a comparison with something else which is immoral, intellectual is a comparison with something else। so if substance is moral then at the same time substance cannot be immoral। तो ये फिर से नेगेशन हुए उसकी किसी कैरेक्टरिस्टिक की। तो स्पिनोजा पॉइंट आउट करते हैं एवरी डिटर्मिनेशन इज एक्चुअली नेगेशन। बहुत मशहूर स्टेटमेंट स्पिनोजा का, बहुत मशहूर स्टेटमेंट। तो अब अगर आप इस चीज को आगे बढ़ाते जाएं तो इसका मतलब क्या हुआ, द मोस्ट पॉजिटिव बीइंग इज सबस्टेंस। सो हिज सबस्टेंस बिकम्स द मोस्ट पॉजिटिव विदाउट एनी लिमिटेशन व्हाटसोएवर। द एक्चुअल टेबल इज नॉट रियल क्योंकि ये फाइनाइट है। कोई भी चीज जो आप देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल शंकराचार्य बात कर रहे हैं जैसे
It is finite for it is limited on all sides by other bodies. Its pure reality is reached when all qualities of color, weight are abstracted from it. तो इस वजह से सबस्टेंस को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली डिस्क्राइब किया जा सकता है। आप उसको पैरेलल इसका ड्रॉ कर सकते हैं शंकराचार्य का नेति नेति कंसेप्ट, नॉट दिस नॉट दिस। तो ये है सुपिनोजा का वो फेमस मैक्सिम, एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन, कि जो ही हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं या वी डिटरमिन इट्स कैरेक्टर, वी लिमिट इट। एज सुन एज वी से दैट सबस्टेंस इज लव, we at once deny cruelty to it. Similarly, any description of what substance is indirectly tells us what it is not. अब इसमें सुपिनोजा फर्दर पॉइंट्स आउट कि सबस्टेंस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं नेति नेति फॉर्म में ऑफ व्हाट इट इज नॉट। लेकिन इसका मसला है एक कि every negation also is actually some affirmation. कैसे? जैसे if we say this brown thing is not a book, हमने negation बोली, नेति बोली कि ये किताब, ये ब्राउन चीज जो है टेबल पे रखी हुई, ये किताब नहीं है। Then indirectly ये जो स्टेटमेंट है हमारा, इट पॉइंट्स आउट दैट इट इज सम ऑब्जेक्ट टू विच द नेम बुक कैन नॉट बी अप्लाइड, समथिंग हैज बीन अफर्म्ड। तो ये एक मसला हो जाता है नेति नेति से कि यू आर स्टिल नॉट एबल टू अवॉइड डिस्क्राइबिंग द थिंग विच यू सेड वाज अनिर्वचनीय। और ये हिंदू फलसफे में भी एक क्रिटिसिज्म है अनिर्वचनीय का। व्हेन यू से अनिर्वचनीय यू हैव डिस्क्राइब्ड इट, यू शुड एक्चुअली रिमेन साइलेंट। तो सुपिनोजा फिर सिर्फ इतना कहते थे कि सबस्टेंस इज द मोस्ट पॉजिटिव एंटिटी। दस इट इज बोथ ट्रू कि सबस्टेंस को हम सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं नेगेशन से, दो इट इज द मोस्ट पॉजिटिव एंटिटी। सुपिनोजा ने सबस्टेंस को नॉट जस्ट ये कहा कि ये इनफाइनाइट है, उन्होंने ये भी कहा कि और कुछ हो भी नहीं सकता, इट हैज़ टू बी इनफाइनाइट। क्योंकि अगर ये फाइनाइट होता इट वुड मीन दैट इट इज लिमिटेड बाय समथिंग एल्स। लेकिन हमारी डेफिनेशन सबस्टेंस की क्या है कि सेल्फ डिटरमिन्ड है, ये सेल्फ कंटेन्ड है और कोई चीज़ इसको अफेक्ट या मॉडिफाई नहीं कर सकती। इसके लिए जो टर्म प्रॉपर यूज़ करते हैं कॉजा सुई, यहाँ पे कॉजा मीन्स फॉर अस एन इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन टू सक्सेसिव इवेंट्स, राइट? बट दैट इज़ नॉट हाउ स्पिनोजा इज यूजिंग इट। हम उसको लैंग्वेज में ऐसे यूज़ करते हैं कॉज को। जब दो चीज़ों का इनवेरिएबल रिलेशन होता है उसको कॉज बोलते हैं, पहले वाले को दूसरे का कॉज। स्पिनोजा टेम्पोरल कनेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, पहले वाला चीज़ कॉज है दूसरे का, नो, नॉन टेम्पोरल रैशनल कनेक्शन की बात कर रहे हैं। उनके हिसाब से कॉज क्या है? कॉज इज समथिंग दैट एक्सप्लेन्स द फेनोमेना, इट डज नॉट सिंपली डिस्क्राइब इट कि हो क्या रहा है। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या हुआ? एक नेसेसरी कनेक्शन बताना हर फेनोमेना में, which means the establishment of logical relations between all phenomena. For example, a conclusion is said to be necessarily connected with its premises. It does not follow temporally, टाइम में it does not follow. जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हैं ना, you have a question, you have an action, आप उससे फिर derive करते हैं further steps and finally you reach to a conclusion. Okay, fair enough. ये जो ये आपका कंक्लूजन है, इट वाज ऑलरेडी इम्प्लिसिट इन द फर्स्ट एक्शन, यू जस्ट मेड इट एक्सप्लिसिट नाउ। तो ये जो कंक्लूजन है ये वक्त में तो बाद में आया आपके हिसाब से, बट ये एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली था। Similarly, by saying that substance is the cause of universe, Spinoza wants to hold that it necessarily follows from the substance, not that there is a temporal relation between the two. वो उसकी उस cause की बात नहीं कर रहे हैं।
सो दिस काइंड ऑफ कॉजल एक्सप्लेनेशन सबसे अच्छा आपको ये ज्योमेट्री में दिखता है. Hence, the often repeated statement of Spinoza is that everything follows from substance in the same way, in which all the angles of a triangle are equal to two right angles follows from the definition of triangle. ये इस कॉज की बात हो रही है. तो जब सुपिनोजा ने कॉजा सुई बोला सबस्टेंस को, सो व्हाट ही रियली मेंट वाज कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ऑल इंक्लूसिव है, इंटर रिलेटेड है एंड इट इज होल. अब सुपिनोजा पूरे रियलिटी को अपने इन ज्योमेट्रिक मेथड से, ज्योमेट्रिक मेटाफोर से डिराइव कर रहे हैं. तो इनका जो ये लॉजिकल सिस्टम बन रहा है, इसमें वक्त की भी कोई जगह नहीं है, टेम्पोरल कनेक्शंस की जगह ही नहीं है इसमें. तो जब हमने अभी बात की कुछ देर पहले कि इनफाइनाइट एंड इटर्नल, तो व्हाट डज ही मीन बाय इटर्नल? इटर्नल की दो डेफिनेशंस हैं हम सबके पास. विल सी देम इन अ व्हाइल, बट लेट्स सी व्हाट ही सेज हिमसेल्फ. ही सेज, एंड आई कोट, by eternity I mean existence itself, so far as it is conceived necessarily to follow solely from the definition of that is eternal. मुझे भी नहीं समझ आया, लेकिन आगे देखते हैं तो समझ आ जाएगा what is he trying to say when we will understand कि eternal का मतलब है क्या. In other words, what is he saying is कि eternity substance का essence है. So eternity follows from the very essence of substance. Substance की essence है क्या? कि ये है, it is. Hence the substance is not temporal, it is durationless. It cannot be described as everlasting. In fact, वक्त के रिलेटेड कोई टर्म अप्लाई ही नहीं हो सकती सबस्टेंस पे. हम जब ये इटरनल की बात करते हैं, हमारे दिमाग में दो में से एक डेफिनेशन होती है, और ज़्यादातर ये वाली कि दैट विच एंड्योर्स थ्रू ऑल टाइम्स. 10 साल पहले भी था, 1000 साल पहले भी था, करोड़ों सालों पहले भी था, 10 साल बाद भी होगा, हज़ारों साल बाद भी होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स अहेड इट विल बी. सो दैट विच एंड्योर्स ऑल टाइम, दैट फॉर अस इज इटर्नल. यही डेफिनेशन हमारे मन में होती है जब हम इटर्नल की बात करते हैं आपस में. इसी सेंस में खुदा को मजहब इटर्नल कहता है. जब आम मजहबी इंसान कहता है कि खुदा इज इटर्नल, वो यही कह रहा होता है दैट ही परसिस्ट्स थ्रू ऑल टाइम. और यही आपको जैसे बाइबल में इज द स्टेटमेंट आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, आई एम दैट आई एम. तो ये इसी डेफिनेशन में है, हम भी यही बात करते हैं. अब दूसरा एटर्नल का मतलब हुआ नॉन टेम्पोरल, वक्त जिसे बयान नहीं कर सकता. ही इज फ्री फ्रॉम टाइम एंड स्पेस. आपने लेटली मुस्लिम डिस्कोर्स में ये टर्मिनोलॉजी देखी होगी, ही इज फ्री फ्रॉम टाइम एंड स्पेस. फ्री फ्रॉम टाइम एंड स्पेस होना, इसको अल्फाजों में टू पुट इट इन वर्ड्स इज वेरी डिफिकल्ट. और इसको सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं कैंट. कैंट सेज कि हमारा जो माइंड है, इसके पास दो सीव्स हैं, देयर आर टू गेट्स, जिससे हर एक इंफॉर्मेशन को पास होना ही होना है, कम व्हाट में, कुछ भी हो जाए, यू हैव इट हैज़ टू पास थ्रू दोज टू थिंग्स. उसमें से एक स्पेस है, एक टाइम है. तो इस वजह से इंसानों के लिए बेहद मुश्किल है खुदा का तस्वुर ऐसे रखना कि वो फ्री फ्रॉम स्पेस है, फ्री फ्रॉम टाइम है. कहने का मतलब क्या हुआ? इफ आई टेल यू दैट द फर्स्ट थिंग दैट एग्जिस्टेड वाज अ पेन, you would still have the thought कि what was before that temporally, कि then there happened a big bang and everything started from there. There can still be the question in your mind what happened before that. मैं अगर किसी भी चीज़ का जिक्र करूं, a paper, a wolf, all of these things are at some place in your mind. You cannot remove space, and in it
कैंट के हिसाब से हम बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सीव हम अप्लाई करते ही करते हैं हर चीज़ पे। तो इसलिए ये दूसरा मीनिंग जो है इटर्नल का, कि जिस पे टेम्पोरल टर्मिनोलॉजी अप्लाई हो ही नहीं सकती, ये वाला इटर्नल हम इजीली, मतलब हम नॉर्मल डिस्कोर्स में इस टेम्पोरल की बात नहीं करते, दैट ही इज फ्री फ्रॉम टाइम। स्पिनोजा इसकी बात कर रहे हैं। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे किसी सिलोजिज्म में कंक्लूजन फॉलोज नॉट टेम्पोरली, नॉन टेम्पोरली, इट इज एग्जिस्टेंट इन द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या ऐसे कि premises appear first and then conclusion follows? No. Conclusion and the premise, they exist at the same time. तो इसी सेंस में सबस्टेंस और उसकी एसेंस दे आर टाइमलेसली इंटरलॉक्ड। एक और कैरेक्टरिस्टिक है सबस्टेंस का जो स्पिनोजा डिस्क्राइब करते हैं कि इट इज वन एंड ओनली एंड इट इज सिंपल। वन का मतलब यहाँ पे सिंपल ही है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की हमको ज़रूरत नहीं है। अगर एक से ज़्यादा सबस्टेंस होती तो वही मसला है फिर से, the one would limit the other and none of them would be infinite in the sense कि unaffected from each other. However, if we argue that there are a number of substances which do not interact, ये भी तो हम कह सकते हैं कि fine they can still be infinite, they are not interacting with each other. लेबनीज ने यही कहा है। उनका उनके फलसफे को मोनोडोलॉजी भी कहते हैं, उसको अगली बार हम देखेंगे। तब भी डिफिकल्टी है और लेबनीज को फेस करनी पड़ी कि ठीक है मान लिया इंडिपेंडेंट है, सारे मोनार्ड्स इंडिपेंडेंट है, तो जितनी रियलिटीज है, एक है, दो है, तीन है, मतलब एक से ज़्यादा, दो है, तीन है, 10 है, मतलब एक के बाद इट शुड बी इनफाइनाइट बिकॉज इट डजंट मेक सेंस टू हैव 3 और 4 और 5। तो व्हाई डजंट इट मेक सेंस वो भी देख लेंगे, बट फॉर नाउ लेबनीज के लिए इनफाइनाइट थे। मसला लेबनीज के लिए है कि हाँ ठीक है, अगर इतने हैं तो ये यूनिटी कहाँ से है, ये हार्मनी कैसे है, इंटरेक्शन कैसे है मैटर का आपस में, अगर ये सब इंडिपेंडेंट है आपस से। और अगर हम अपने एक्सपीरियंस को ट्रस्ट करें, जो हमारा क्लियर एंड डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंस है सबका, देन इट इज ट्रू द वर्ल्ड प्रेजेंट्स इन फ्रंट ऑफ अस मल्टीप्लिसिटी। ये बिल्कुल क्लियर है, सबको दिख रहा है। एंड येट इवन इफ देयर इज नो कंप्लीट हार्मनी, हम मान लिए स्केप्टिक अप्रोच रखेंगे कि देयर इज नो हार्मनी इन दिस यूनिवर्स, येट ये हम डिनाई नहीं कर सकते कि कुछ इंटरेक्शन है चीज़ों के आपस में। लेबनीज या कोई और अगर इंडिपेंडेंट इनफाइनाइट चीज़ मानता है, कैसे करोगे इस इंटरेक्शन को डिस्क्राइब? लेबनीज ने कोशिश की थी। लेबनीज ने एज्यूम किया एक डॉक्ट्रिन जिसको कहते हैं PEH, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी। प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी जैसे वही माइंड और आपके माइंड ने आपके हाथ को उठाने पे कैसे फोर्स किया, नहीं होता हमारे पास इजीली एक्सप्लेन, हाउ डिड माइंड डू इट। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि माइंड इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, हैंड इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। माइंड इज गोइंग इट्स ओन चेंजेस, हैंड इज गोइंग इट्स ओन चेंजेस। द मोमेंट mind went into that mode where it was thinking head should be raised, at that moment independently of that thought, the hand was going into those changes where it went into that mode where it was raised independently of each other, parallel. तो लेबनीज को ये प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी बिटवीन मोनार्ड्स अज्यूम करनी पड़ी। येट वी नो नाउ, वो हम जब लेबनीज को पढ़ेंगे तब डिटेल में समझेंगे, ही हैज फेल्ड टू एक्सप्लेन यूनिटी, वो हम वहां पे देखेंगे। तो इस हिसाब से स्पिनोजा कंसिस्टेंट है, ही इज एडहेरिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सबस्टेंस और उसका इनफाइनाइट कैरेक्टर, ही इज एडहेरिंग टू इट रिजिडली, और उससे नेसेसरी कंक्लूजन यही निकलता है कि एक ही सबस्टेंस हो सकता है। हेंस वन मोर, वो क्या कहते हैं उसको, लाइक एक स्टेटमेंट आई ऑफन रिपीट के
जब हम रैशनलिज्म को फ्री फ्लो देंगे तो वी वुड रीच वहदतुल वजूद, या वी विल रीच शंकराचार्य और वी विल रीच स्पिनोजा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। अब जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सबस्टेंस एस्टेब्लिश हो गया स्पिनोजा के लिए, तो इसके इम्प्लीकेशंस होंगे कुछ। और स्पिनोजा का मेथड क्या है? ज्योमेट्रिक, कि एस्टेब्लिश की कोई चीज़, कोई एक्सियोमेट्रिक ट्रुथ, उससे अब एक एक बात निकालेंगे। सबस्टेंस हो गया हमारा सेट। अब देखते हैं इससे क्या क्या होगा फर्दर। स्पिनोजा का जो ये डिस्क्रिप्शन है सबस्टेंस का, वन इनफाइनाइट, सेल्फ कॉज्ड, इटर्नल, एवरीथिंग फॉलोज फ्रॉम इट, ये आपने कहाँ सुना है? और आपके यहाँ खुदा का डेफिनेशन यही है। ये यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि हाउ, व्हाई डू आई कॉल इट एथीज्म। क्योंकि इसने क्या किया यहाँ पे, इसने मटेरियल को उठा के उसी को खुदा बोल दिया। मैंने जानबूझ के अभी तक इस चीज़ के लिए गॉड टर्म यूज़ नहीं की, so that you would keep on feeling we are talking about matter. We are actually talking about matter. While in the text, and Spinoza himself uses the word God. Now, by using the word God, it makes us feel that he is talking about the God which we understand, but that he is not. He's not talking about that God at all. Now, you would understand why he is calling it God then. क्योंकि हम जिस चीज़ को खुदा बोलते हैं वो इनफाइनाइट है, सेल्फ कॉज्ड है, इटर्नल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कहते हैं जब गॉड की डेफिनेशन यही है तो सबस्टेंस ही गॉड है। फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। हम जब गॉड की बात कर रहे होते हैं, वी ऑलवेज इनवेरिएबली मीन दैट पर्सनल गॉड। सो दिस गिव्स एन इम्प्रेशन दैट दीज सिस्टम्स आर थियस्टिक, विच आई बिलीव दे आर नॉट। और यही रीजन था क्योंकि इन्होंने खुदा का वर्ड यूज किया, गॉड वर्ड यूज किया, दैट क्रिएटेड ट्रबल फॉर हिम। क्योंकि जो ये खुदा के बारे में अब बातें बोल रहे थे, वो बातें हम नहीं मानते, तो उस वक्त के यहूदी नहीं मानते। तो दैट्स व्हाट लेड टू ट्रबल। इफ ही वुड हैव सेड ऑल दीज थिंग्स अबाउट द सबस्टेंस, then it was altogether a different thing about matter, altogether a different thing, but he called it God. So that started his troubles with his contemporaries. इस पूरे डेफिनेशन की पूरी इम्प्लीकेशंस हम अभी भी, आई डोंट नो, अभी भी हम इनको कर सकते हैं, वी कैन टेक डीपर, बट फॉर नाउ लेट्स सी अ फ्यू इम्प्लीकेशंस। अगर ये खुदा और द सबस्टेंस, अगर ये ऑल इंक्लूसिव होल है, आउटसाइड ऑफ विच नथिंग कैन लाई, देन व्हाट हैपेंस? नेचर, when you conceive it as a whole, it is identical with God. God and nature as a whole is one and the same thing. God and nature are one. तो इसीलिए दो टर्म लगाने की जरूरत थी ही नहीं. Should have talked about nature, and that this is what gives an impression that these systems are theistic. इस फेनोमेना को पैंथीइज्म कहते हैं. अब इसमें इसको पैंथीइज्म कहने के लिए हमें एक चीज माननी चाहिए थी, वो ये कि you would still have to consider one to theists that it would at least be conscious, but later you would find कि consciousness भी allow नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते. Rationality would not allow that. We'll find that in some moment. So it is actually being talked about matter, that's all, without any consciousness at anything. तो इस पैंथीइस्टिक कंसेप्ट के हिसाब से it is the reality of single substance, single God, which permeates and dwells in all things. ये substance infinite and whatever there is follows from God or substance, then we can say that substance or God is causa sui or self creative, क्योंकि है ही नहीं इसके अलावा कुछ, बट लेकिन हम आप अपने सामने देख रहे हैं क्रिएशन, सो इट इज सेल्फ क्रिएटिव. वेस्टर्न थियोलॉजी में, या वेस्टर्न थियोलॉजी क्या, हर एक मजहब में, चाहे फिर वो एवरेज हिंदू भी क्यों ना हो,
फिलॉसफी अलग चीज होती है, एवरेज लोगों का बिलीफ अलग चीज होता है। उनके लिए गॉड इज पर्सनल बीइंग, जिसके पास एक विल है, एक इंटेलेक्ट है, फीलिंग है, उसको क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स माना जाता है। स्पिनोजा का खुदा ऐसा खुदा नहीं है। ही डिनाइज दिस कंसेप्ट ऑफ गॉड। इनके हिसाब से गॉड कैन क्रिएट ओनली आउट ऑफ सम प्री एग्जिस्टिंग मैटर। क्रिएशन एक्स नाइलो नहीं मानते, नथिंग से समथिंग आ रहा है ये नहीं मानते, एंड दैट मेक्स सेंस एज वेल फिलोसॉफिकली स्पीकिंग। सो गॉड कैन क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इटर्नल, आउट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मैटर। नाउ प्री एग्जिस्टिंग मैटर मीन्स इटर्नल मैटर। नाउ थिंक अबाउट इट, ये इनकी डेफिनेशन के साथ ये हो रहा है कॉन्ट्राडिक्ट। अगर मैटर इटर्नल है, को एग्जिस्टिंग विद गॉड, दिस वुड मेक मैटर को इटर्नल विद गॉड। दिस वुड लीड टू डुअलिज्म, नॉट मोनिज्म। मतलब वही ना, वही वाला मसला कि वन वुड लिमिट द अदर। गॉड इज नॉट मैटर नाउ, लिमिट हो गया कंसेप्ट। लेटर कैंट भी यही दिखाते हैं कि अगर आप क्रिएटर गॉड पे यकीन रखें, तब आपको एक आर्किटेक्ट या डिजाइनर गॉड ही मानना पड़ेगा। इनफाइनाइट गॉड आप नहीं मान सकते। इस वजह से स्पिनोजा ने यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी मेंटेन की। He denied the concept of a creator god. Further, अगर खुदा क्रिएटर है, अगर क्रिएटर गॉड में यकीन रखते, ऑल ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स आर आल्सो आर्ग्यूमेंट्स फॉर शंकराचार्य's ब्रह्म, सो ऑल ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स होल्ड देयर एज वेल। अगर खुदा क्रिएटर है, अगर सबस्टेंस क्रिएटर है, द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटर गॉड वुड लीड अस टू सपोज द रियलिटी इन अ टेम्पोरल ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वक्त ऐसा भी रहा होगा जब कायनात नहीं थी। देयर वुड बी अ टाइम व्हेन देयर वुड बी नो वर्ल्ड। लेकिन सबस्टेंस क्या है? इटर्नल है, नॉन टेम्पोरल है, तो इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। फर्दर, गॉड और नेचर ये आइडेंटिकल है। नेचर हमको पता है इज गवर्न्ड बाय इटर्नल लॉज, दैट इज बाय लॉजिकल इंटर रिलेशनशिप। इस रैशनल ऑर्डर में तब केओस की कोई जगह नहीं है, इसलिए देयर इज नो रूम फॉर केओस, देयर इज नो रूम फॉर आर्बिट्रेरीनेस। हर एक चीज स्ट्रिक्टली डिटरमिन्ड है, एवरीथिंग फॉलोज नेसेसरली। जैसे ट्राइंगल की डेफिनेशन से इट फॉलोज दैट द सम ऑफ एंगल्स वुड बी टू राइट एंगल्स। तो हर एक चीज नेसेसरीली होती है। और फर्दर इसमें जब ऐड करेंगे आपकी नेचर इज कॉजा सुई सेल्फ क्रिएटिंग, इसका मतलब ये हुआ तब नेचर इज फुल्ली इंटेलिजिबल बाय इटसेल्फ अलोन, देयर इज नो नेसेसिटी फॉर अपीलिंग टू ट्रांसेंडेंट गॉड। ये है स्पिनोजा का मटेरियलिज्म। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके समझने की क्या है कि इस लॉजिकल डिटर्मिनिज्म में वॉलंटरी फ्रीडम की कोई जगह नहीं है। डिटर्मिनिज्म जो स्पिनोजा का है, इट हैज़ नथिंग टू से अबाउट द फ्रीडम ऑफ विल जो इंसानों में है, which pertains to voluntary action. अगर हम स्पिनोजा का ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिटर्मिनिज्म इसको फर्दर आगे बढ़ाएं, then obviously freedom of will have to be denied. लेकिन जब खुदा को कॉज सुई बोला, फ्री कॉज बोला, तो ये फ्री का मतलब क्या था तब? ये फ्री का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि देयर इज चॉइस। इस फ्री का मतलब ये था देयर इज नथिंग आउटसाइड हिम जो उसकी एक्शन को डिटरमिन करेगा। बट गॉड हिमसेल्फ cannot be said to have any will or feeling at all. God as nature is simply an all-inclusive interrelated logical system. और एक लॉजिकल सिस्टम में विल फीलिंग की कोई जगह नहीं है। मैथमेटिकल थ्योरम में कोई जगह नहीं होती चॉइसेस की। रिजल्ट्स नीड नेसेसरीली, सो गॉड आल्सो हैज नो विल और फीलिंग।
तो खुदा को इस नेचर के साथ इक्वेट करके सुपिनोजा ने एक इम्पर्सनल गॉड जिंदा किया। तो इस वजह से भी एक पैंथेइस्टिक सिस्टम कहा जाता। हिंदुस्तान के बाहर पैंथीइज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और एविडेंस दिखाती है कि वेस्ट में भी पैंथीइज्म उसके रूट्स प्लॉटनेस में है, और जिसको कहा जाता है उसकी भी इंडियन ओरिजिन ही है। क्रिश्चियनिटी का खुद का ओरिजिन जुडाइज्म में है, जो एंटी पैंथीइस्टिक है खुद में। तो इस वजह से जब हज़रत ईसा ने कहा था आई एंड माय फादर आर वन, बाइबल के हिसाब से द ज्यूज वांटेड टू किल हिम फॉर दैट। पैंथीइज्म यही मेंटेन करता है कि हर एक चीज़ इज गॉड, ट्रीज, रिवर्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एवरीथिंग गॉड। तो इसीलिए पैंथीइज्म का खुदा इम्पर्सनल है। लेकिन जो ज्यूज, क्रिश्चियंस, एब्राहमिक फेथ्स का खुदा, और हिंदूज का भी बाय एंड लार्ज सबका यही होता है, एवरेज इंसान का खुदा जो होता है, ही लिसन्स टू प्रेयर्स, he alleviates the suffering of devotees, he rewards, he punishes। तो वो ऐसा खुदा होता है, वो पर्सनल होता है। तो जब इस क्रिएटर खुदा को डिनाई किया, पर्सनल खुदा को डिनाई किया, सुपिनोजा ने डिनाई किया वो एक मजहब जिसे हम सब जानते थे, हम सब लोग। इस वजह से इनको हीडियस एथीस्ट कहा जाता है। फर्दर, खुदा से ऊपर, अबव नथिंग, देयर इज नथिंग ओवर एंड अबव गॉड, सो ऑल इज गॉड एंड एवरीथिंग फॉलोज फ्रॉम गॉड। फॉर दिस रीजन हम ये कह सकते हैं कि खुदा ही है जो है, इज सेड टू बी द इंडिविलिंग, एंड इट इज द परवेडिंग प्रिंसिपल फ्रॉम ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पे आती हैं दो इम्पोर्टेंट टर्म्स सुपिनोजा की। तो सुपिनोजा के हिसाब से खुदा, इंस्टेड ऑफ बीइंग रिगार्डेड एज ट्रांसेंडेंट, इज रियली एन इमिनेंट ग्राउंड ऑफ ऑल दैट इज, एक सेल्फ क्रिएटिंग रियलिटी, जिसको वो नेचुरांस कहते हैं। ये इनकी टेक्निकल टर्म है, नेचुरांस। और अपनी स्टैटिक एस्पेक्ट में, इन इट्स एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिव प्रोडक्ट, नेचर को ये कहते हैं नेचुराटा, सम टोटल ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट्स। तो नेचर एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम है। अब अगर हम इस सेंटेंस पे कंसंट्रेट करें तो आपकी वो ये बात आपको क्लियर समझ आ जाएगी कि इसको हम एथीस्टिक क्यों कह सकते हैं। अगर हम एम्फेसाइज करेंगे कि नेचर, अब नेचर वर्ड यूज़ करेंगे 2 मिनट के लिए, कि जो है बाहर की दुनिया, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इट्स ए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रियलिटी। अगर हम एम्फेसाइज करें इस स्टेटमेंट कि यही जो है यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, देन दिस इज डेफिनेटली एथिज्म। एथिज्म और थीइज्म में जो हम डिफरेंस समझते हैं वो यही समझते हैं कि एथिस्ट कहते हैं नहीं, इसके अलावा है खुदा। एथिस्ट कहते हैं नो, दिस इज इन इटसेल्फ एक्सप्लेनेबल, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता है, खुदा की ज़रूरत नहीं है हमको इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस वजह से ये एथिज्म भी कहलाया जा सकता है। Here nature is conceived as one interconnected system, one intelligible and self-contained cosmos, inclusive of all phenomena, physical and psychical, past, present, future, everything. इस जनरलाइजेशन में खुदा की कोई जगह है नहीं। ठीक, और भी कुछ चीज़ें हैं विच वी आई विल गो थ्रू क्विकली implications में। सुपिनोजा सबस्टेंस को एज वन इनफाइनाइट सेल्फ कॉज, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ कंटेन्ड इटर्नल रियलिटी, जिससे सब चीज़ें नेसेसरली फॉलो होती हैं, ये कहते हैं। ये थियोलॉजी में डिस्क्रिप्शन है खुदा का, इस वजह से सुपिनोजा सबस्टेंस को खुदा कहते हैं। लेकिन इनका जो कंसेप्ट है ये क्रिएटर गॉड से अलग है। यहाँ पे ट्रांसेंडेंट क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हु रूल्स वाया प्रोविडेंस नहीं है।
यहाँ पे खुदा नेचर है जो खुद में इनफाइनाइट है, नेसेसरली है और फुल्ली डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम बनता है इससे, जिसके ह्यूमंस भी एक हिस्सा हैं। और ह्यूमंस कैन ओनली फाइंड हैप्पीनेस थ्रू ए रैशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सिस्टम, और इसको वो कहते हैं इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड। इसको हम इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड को शायद आगे देखें। स्पिनोजा जो हमने कल ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट फॉर गॉड देखा था, एथिक्स में उसके बारे में ये बात करते हैं, a version of it is there by which he purports to establish the necessary existence of an absolutely infinite substance. But this argument is a little different from Anselm's argument. The most significant difference is that it is not a straightforward move from conceivability of the being, जिससे ऊपर आप फर्दर कोई बीइंग नहीं कंसीव कर सकते, और उससे आप फिर आगे चल के बोलेंगे कि क्रिश्चियन गॉड एग्जिस्ट्स, द गॉड वी बिलीव इन एग्जिस्ट, उससे सिर्फ वो नेसेसरी बीइंग का एग्जिस्टेंस प्रूव हुआ। यहाँ पे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गॉड इटसेल्फ दैट इट इज एन एब्सोल्यूट इनफाइनाइट सबस्टेंस which must necessarily exist. Is there anything else we need to discuss? Hmm. God and nature are identical. Nature by itself is, there is fully intelligent. There is no necessity for appealing to a transcendent God. हर एक चीज का नेचर के साथ परमानेंट रिलेशन है। तो yeah, that would be it for today.